one and all present here. With the blessings of our respected chairman, Sir Shri Nirmal Singh Ji Dhillon, today we all have gathered here to celebrate NSS Day. And for this, I am very honored to welcome Professor Agnes Dhillon, Secretary Dev Samaj and Secretary College Management, Dev Samaj College of Education, Chandigarh. She is not only our pillar of strength, but she is a wonderful human being as well. Ma'am, we are very grateful to you for your unconditional support and guidance, and you are the backbone of this college. Not only this, you are our source of inspiration, and you are a very good motivator, and we are blessed to have you in our lives. We bow our heads in your respect, ma'am. A very warm welcome to you. I am also very delighted, Principal Dev Samaj College of Education, Chandigarh. Ma'am always encourages us to participate in every field with great zeal and enthusiasm. She is our role model and she always brings a wealth of knowledge and experience to our college. And we see its positive impact on everyone. A very warm welcome, ma'am. I am also very honored to welcome our today's guest, Dr. Nemi Chandji. He is a state liaison officer NSS department and has 17 years of teaching experience to his credit. He has worked on 3 projects, Projects Udya, Projects Helping Hand and Project Nani Jaan. He has been awarded several times at international, national and state levels for his wonderful contributions. We are very delighted to have you here, sir, and a very warm welcome to you. It's my immense pleasure to welcome our NSS program officers, Dr. Madhvi Goyal and Mrs. Karuna Singh here. I also welcome worthy faculty members and dear students. Welcome to each one of you present here. Now, I request Richa ma'am and faculty members and respected Agnes ma'am to do the green welcome of our today's guest. Please everyone put your hands together. College, I respect Rajbir ma'am, Narendra sir along with students to please come forward for today's prayer.
edition is for celebrating the new B.Ed batch 2024 here by organizing the Diksharan ceremony, which is an initiation ceremony and a customary in our Indian tradition. Can I have a huge round of applause for Charanjeet ma'am, please? दीक्षाराम के बारे में बात करना शुरू करें। हमारे क्योंकि नए स्टूडेंट्स हैं जो शायद हमारे आज के चीफ गेस्ट सर नेमी चंद जी को ज़्यादा नहीं जानते, तो सर अपने आप में ही भी एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। और स्टूडेंट्स के लिए मैं बताना चाहूँगी कि सर को 7 स्टेट अवार्ड्स मिल चुके हैं, जिसमें कि उन्होंने कोविड में जो काम किया उसके लिए उनको चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन से अवार्ड मिला, सबको स्टेट NSS अवार्ड मिला, बेस्ट NSS प्रोग्राम ऑफिसर का अवार्ड ऑफ एप्रिसिएशन मिला उनको इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब और चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, फिर चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पार्लियामेंट इलेक्शंस के लिए, और इतने बहुत सारे अवार्ड्स हैं। और सबकी लीडरशिप के अंडर जो NSS में काम हो रहा है सर, वो अपने आप में एक इंस्पिरेशन और एग्जाम्पल है। और हमारे लिए तो आप हमारे देश समाज का एक मेंबर ही हमेशा लगते हैं जब आप यहाँ आते हैं, तो आपके आने के लिए बड़ा शुक्रिया। और सर आप एक इंस्पिरेशन है हमारे सब स्टूडेंट्स के लिए। राउंड ऑफ अप्लॉज सर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दीक्षाराम जो है ये UGC ने स्टार्ट किया था 2019 में, जो स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम, कि जब स्टूडेंट्स हमारे कॉलेजेस को ज्वाइन करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में ज्वाइन करते हैं, तो इनकी इंडक्शन के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो हमारे कॉलेज में तो जैसे भी आपने देखा पहले भी बहुत होती हैं, पर फॉर्मल जो दीक्षाराम का आज हम प्लेज लेंगे और उसकी स्टार्ट करेंगे। सो इसका मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहूँगी कि at present Indian higher education system enrolls 3.6 crore students. It is the responsibility of universities and colleges to provide quality education to each and every student. The transition of students from secondary to higher education, from undergraduate to postgraduate program, needs support of the institution in a way that they develop a sense of belongingness and an awareness of their rights as well as responsibilities. I pledge to maintain a high scholastic standing, to endeavor intelligently and courageously, to be a teacher, and to give of myself freely in service to others, and to hold as fundamental and worthy an untarnished character. In so doing, I shall prove myself worthy of becoming a teacher. I wish all our new students very best for this course, and furthermore, they should do their best with utmost sincere efforts, passion, and enthusiasm. इधर आओ। Yes, ma'am. The audience of today. Please put your hands together for the prayer. बहुत ही सम्मानीय और अपने व्यक्तित्व के माध्यम से मार्गदर्शित करने वाले मैडम अग्निश ढिल्लों, ऋचा मैम, किरणजीत मैम, चरणजीत मैम, और मेरी टीम के जो पिलर है, बैकबोन है NSS की, मैडम माधवी एंड मैडम करुण, और NSS के प्यारे प्यारे वॉलेंटियर्स जो NSS की आत्मा है। जहाँ तक इस कॉलेज की बात है, मेरा एसोसिएशन 10-12 साल से भी ज़्यादा का है, जब मैं खुद प्रोग्राम ऑफिसर हुआ करता था और NSS के कैंप लगाया करता। तो जब परसों माधवी मैम का कॉल आया कि सर हमारा प्रोग्राम है 24 को, और सर आपके पास टाइम होगा तो आप मेरे पास आना। वो मैडम मैं 24 तारीख को इतना बिजी हूँ, पर बिजी होऊंगा तो 3 बजे बाद में, और आपका एक कमिटमेंट है। पर कल ये प्रोग्राम नहीं हो पाया, मैं भी बिजी था और कुछ कारण आप लोग भी बिजी थे। तो इस आज जैसे बात हुई तो निश्चित रूप से कोई भी
कार्यक्रम इस कॉलेज का रहा हो, और मैंने हमेशा कोशिश की है कि मैं इसके अंदर हाजिर हूँ। हमेशा मेरी अटेंडेंस 100% रही। पूरे यूपी चंडीगढ़ के अंदर ऐसा नहीं है कि मेरे पास समय होता है, समय नहीं होता, पर कुछ संस्थान ऐसे हैं जो मेरी प्रायोरिटी पे होते हैं, और वहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूँ। और इसमें से सबसे पहला ये इंस्टीट्यूशन है जो मेरी प्रायोरिटी है। आपके जितने भी मैं जो यहाँ फैकल्टी प्रेजेंट हैं, अधिकतर तो मुझे जानती है, मैं उसका भी धन्यवादी हूँ कि एकमात्र ये इंस्टीट्यूशन है जिसके अंदर पूरी फैकल्टी भी होती है। तो मैं आपको भी धन्यवाद देता हूँ कि एक हॉलिस्टिक विजन के लिए, एक इंस्टीट्यूशन को ग्रो करने के लिए जो हॉलिस्टिक विजन है, उसमें सब मिलके जब किसी इवेंट को करते हैं तो जो ग्रूमिंग है हमारे वॉलंटियर्स की, वो बहुत अच्छी हो पाती है। तो यहाँ पे आपको जो बात करना चाहता हूँ, एक एनएसएस वॉलंटियर ही नहीं हुआ, आप देश के जो भविष्य के युवा हैं, जो भविष्य तय करने वाले लोगों को, और यही एकमात्र कारण है जिससे मुझे बार बार ये संस्थान आकर्षित करता है कि इसके अंदर वो इंसान तैयार होते हैं जो इस देश और समाज के भविष्य का निर्माण करेंगे, और उनके ऊपर काम करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। और इसी को ध्यान में रख के मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं जाऊं। मैं वॉलंटियर्स को ये कहना चाहता हूं कि आप उन भाग्यशाली लोगों में से हो जो इस संस्थान में पढ़ रहे हो, क्योंकि एजुकेशन विद मॉरलिटी जो मुझे देखने को मिली है वो यहीं पे मिली है। और अगर एजुकेशन में मॉरलिटी नहीं है, नैतिकता नहीं है, वैल्यू सिस्टम नहीं है, तो हम चाहे कितने ही ऊंचाइयां छू लें, हम उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाएंगे। अवेयरनेस होगी, वो हमारा पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो भी करते रहना चाहिए। पर अब जब डिजिटल युग के अंदर एक पोर्टल है जो यूथ के लिए आया है, आपके लिए बेनिफिशियल भी है, माई भारत। और माई भारत के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम हैं जो आपको, जैसे एक्सपीरियंस लर्निंग प्रोग्राम है कि आप किसी जगह 30 दिन काम करते हो तो आपका एक पूरा का पूरा 30 दिन का सर्टिफिकेट तैयार होता है, और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पोर्टल से, तो फ्यूचर के अंदर भविष्य में आपको बहुत काम आएगा। एनएसएस के अंदर स्टेट एनएसएस सेल ने 2 प्रोजेक्ट शुरू किए। एक प्रोजेक्ट किया सारथी, जिसके अंदर जो इस समय पीजीआई है, हॉस्पिटल 16 है, 32 की मेडिकल कॉलेज 16 है, उसके अंदर हमारे वॉलंटियर बैच बना के 30 के पीजीआई में 30 का बैच बनाते हैं, और वहाँ पे जो असिस्ट मैनेजमेंट उसको और पेशेंट को असिस्ट करते हैं। कल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स आई और उन्होंने जब बच्चों वॉलंटियर्स के साथ इंटरेक्ट किया तो शी वाज सो हैप्पी कि मैं सोच नहीं सकती कि ये जो सर्विस करने वाले वॉलंटियर हैं कितने कॉन्फिडेंट हैं और क्या बात करेंगे। दिस ब्रिंग्स अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आप लोग भी इसमें, मैं कहूँगा मेरे प्रोग्राम ऑफिसर्स को कि इस तरह के बैच भी अगर आप तैयार कर पाते हो, और एक होता है कि तब में कई बार हम भूल भी जाए, पर जब लर्निंग बाय डूइंग है वो हम कभी भूलते नहीं, और हमें पता भी होता है कि हेल्थ केयर सिस्टम कैसे काम करता है, हेल्थ केयर सिस्टम के साथ हम कैसे अपने आप को साथ जोड़ते हैं। एक पहलू ये है, तो इस पे अगर आप स्कूलों में जाते हो, पढ़ाते हो, प्रोजेक्ट भी करते हो, और ये संस्थान तो जो ग्रिड के साथ बना, और मेरा ये मकसद था कि मैं यहाँ एक ऑफिसर बन के रहने वालों में नहीं हूँ, कुछ ऐसा करूँ कि पूरे समाज और देश के लिए काम आए। तो मुझे इस बात की खुशी है कि हम कर पाए। मैं तो एक जरिया हूँ, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, पर जो बैकबोन है वो मेरे एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर और एनएसएस वॉलंटियर है, तभी कर पाता। तो मैं आई एम द ओनली मीडिएटर एंड फैसिलिटेटर। पर जो बात वहाँ रख देते हैं, हमारी अच्छी चीज़ों को मैं दिल्ली तक पहुँचाता हूँ, दिल्ली को अच्छा लगता है, तो वो फिर कहते हैं अब हमें पूछने लग गए कि चंडीगढ़ वालों अब क्या करें, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो ये काम एक ही काम करना है, 2-4 पेड़ पौधे लगाने। ऐसे ही आप ड्रग डी एडिक्शन पे काम कीजिए। अगर आप एक की भी
को भी मेन स्ट्रीम में लाते हो, छुड़वाते हो, तो इतने 20,000 वॉलंटियर है, कितने लोगों पे इम्पैक्ट पड़ेगा। काम छोटा ही कीजिए। और दोनों प्रोग्राम ऑफिसर और वॉलंटियर को भी कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ कि आपकी सर्विसेज पंजाब यूनिवर्सिटी ने रिकॉग्नाइज की। और चरणजीत मैम को भी मैं कहना चाहता हूँ कि बड़ा अच्छा आपने फाउंडेशन एनएसएस की यहाँ डाल रखी है, और मेरे को उम्मीद है कि ये परंपरा दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी, ज़्यादा अच्छी होती जाएगी। बरगद के नीचे भी कैंप लगाया करते थे एडॉप्टेड विलेज के अंदर, तो वो भी एक दौर था कि एक गांव था पास में, उसके अंदर बोले सर आप आ सकते हो, वो कहीं बुला लीजिए, आप आ जाएंगे। तो एक लंबा एसोसिएशन है हमारा, और इस इंस्टीट्यूशन के साथ तो ये तो बाद में अच्छी बिल्डिंग। थैंक यू मैडम आपको कि आपने उस दौर से, मैंने वो दौर भी देखा है जो अंडरग्राउंड के अंदर भी यहाँ पे कुछ हमारी क्लासेस चलती थी, और आज एक वेल स्टेब्लिश्ड और शहर का और इस रीजन का माना हुआ है इंस्टीट्यूट जो टीचर ट्रेनिंग के लिए है, बहुत ही काबिल तारीफ है, बहुत ही अच्छा लगता है। उसको आप थोड़े सचेत रह के सोसाइटी के अंदर अवेयरनेस फैला के रहिए, पॉजिटिव रहिए, अच्छा काम कीजिए, जिससे आप तो बचेंगे ही बचेंगे और समाज में भी अच्छा कुछ कर पाएंगे। एक एनएसएस का बड़ा मोटो है, मैंने मेरी जिंदगी में उस चीज को अपनाया भी है कि एक ह्यूमन बिहेवियर की एक लिमिटेशन होती है, साइकोलॉजी वाले मैम जानते हैं कि हम ना एक्सपेक्टेशन पाल लेते हैं, उम्मीद कि मैंने इतना किया और मुझे क्या मिला, फिर हमारे दुख दर्द शुरू हो जाते हैं। दुख का कारण वही होता है। तो एनएसएस के पास बहुत अच्छा मंत्र है, नॉट मी बट यू। दिल में छुपा लीजिए आप इसको, है ना, नॉट मी बट यू को दिल के पास लगा लीजिए। मैं कहता हूं आपको जिंदगी भर दुख हो ही नहीं सकता किसी भी सूरत में। किसी से कोई उम्मीद मत कीजिए, सेल्फलेस सर्विस कीजिए, बहुत आनंद आएगा, बहुत खुश रहोगे आप। ब्लड, मेरा कंसर्न यही रहता है कि जब ब्लड डोनेशन या हेल्थ चेकअप कैंप लगाते हैं तो हमारे 70% केस रिजेक्ट हो जाते हैं, ब्लड देने लायक ही नहीं होती है। तो अगर हम कहें कि हमारा युवा देश है, युवा देश का असेट है, और यहाँ पता चला हमारा युवा तो खोखला है, तो असेट कहाँ बने, वो लाइबिलिटी बन जाएगा। तो अपनी आप लाइफ स्टाइल और जो खाने की हैबिट्स है ना, उसको थोड़ा बदलिए। पिज्जा, बर्गर, कुरकुरे कुछ नहीं है उसके अंदर, जो प्रोसेस फूड है कुछ नहीं है। प्रोसेस फूड में से आप पेड़ उगा सकते हो? नहीं उगा सकते। जिसमें जान ही नहीं है तो वो आपको कैसे सपोर्ट करेगा? तो आप, है ना, स्वाद चाहिए या स्वास्थ्य चाहिए, उस पर विचार कीजिए। किसी बच्चे का, एनएसएस वॉलेंटियर का कोई सवाल हो या कुछ पूछना हो एनएसएस के बारे में या एसोसिएट होने के बारे में या उससे रिलेटेड कोई भी इशू हो, तो आप पूछ सकते हैं। हाउस इज योर्स, पार्ट ऑफ प्रॉब्लम नहीं। मैं आपको बताऊं, हमारे प्रोग्राम ऑफिसर को मैं चाहे कभी कॉल करो, ना नहीं होते उनके। आप सोच सकते हो, कभी ना नहीं होता, हाँ होता है। बहाने नहीं होते, काम करना होता है, तो वी हैव टू रेडी। ठीक है, तो आप अपने पॉजिटिव रहिए, एनर्जी को चैनलाइज कीजिए, सोसाइटी में अच्छा काम कीजिए। जैसे जैसे चेंजेस आ रहे हैं एनएसएस के अंदर, उनको अडॉप्ट कीजिए और अपना फायदा और समाज का फायदा कीजिए। जय हिंद, जय भारत। Thanks a lot, sir, for your insightful words, and today we have learned a lot from you. Thank you, sir. Now, congratulations to Karuna ma'am as well, and I request respected Ms. ma'am, Richa ma'am, and faculty members to please come forward for the award ceremony of Madhvi ma'am and national anthem.
Yes. मैम नेक थोड़ा सीधा करना लास्ट